हमने एक स्टडी की थी एम्स में कि भाई हमने देखा अपना डाटा उठा के किसके हम जॉइंट बदल रहे हैं, फीमेल के बदले जा रहे हैं। कौन सी ये फीमेल है, उनका ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ जो एक्सरसाइज नहीं करती हैं। जो घर में रहती थी। देखो, खड़े होके खाना बना लिया, दैट इज नॉट ए एक्सरसाइज। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, इस शरीर को 1 से लेके 2 घंटे कष्ट दो, मतलब अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज करो, और आप बुढ़ापे से, एजिंग से दूर रहते हो। एंड ट्रिपल डी, डिसीज से दूर, ड्रग से दूर और डॉक्टरों से दूर। Women today are living longer, staying active for longer. Yet, when it comes to the bone and joint health, not many are aware or probably even care. To discuss why it happens and how women can actually work on their bones and muscles and strengthen their overall well-being, we have with us Dr. C.S. Yadav. Dr. C.S. Yadav, thank you so much for joining us. Good afternoon. Dr. Yadav barely needs an introduction. He has been with the All India Institute of Medical Sciences in Delhi for a long time. After that, he joined Sir Gangaram Hospital in the capital. As of now, he works with Primus Hospital. Thank you so much, Dr. Yadav, for thank you for having being me. with us. In terms of bone health, we use the terms bone and joint health interchangeably. One means the other means the one. Is there some difference? If yes, what exactly is the difference? The little whole body is one unit, and everything is once again interlinked and mutually dependent. So what happens, you do any exercise, it improve your muscle, it improve your bone health, it improve your joints as well. So it is not like जो आपने एक्सरसाइज की खाली बोन को स्ट्रॉन्ग करेगी, मसल को नहीं, जॉइंट को नहीं. Few exercise maybe they are primarily for the joints, and few exercise may be primarily for the bone health. But whenever your bone is strong, your joints become strong. So it is seen in practice. Whenever patient has osteoporosis, the chances of degeneration or degenerative arthritis, what we call it is osteoarthritis, the chances of arthritis are more, it comes faster. So they are basically interlinked. It is not in isolation. Even whole body is a unit, especially lower part. So in a way, if your bone health is good, chances are that your joints are also healthy, right? Yeah, chances. We can safely say yes, that. definitely we can make Yeah. that comment. Yeah. सिटिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक लोग बैठे रहते हैं, ये इट्स नॉट गुड, एवरीबडी नोज. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन, फॉर इंस्टेंस एवरीबडी इज डूइंग अ डेस्क जॉब. तो अगर कोई दिन के 8, 9, 10 घंटे बैठा रहता है और 1 घंटा हमने एक्सरसाइज कर लिया, तो वो जो डैमेज हो रहा है 10 घंटे बैठने से, क्या वो 1 घंटे के एक्सरसाइजिंग से वो अनडू कर सकते हैं? उसके सारे जो हार्म्स हैं वो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है सुमी, वेरी क्लोज टू माय हार्ट. ओके. मैं हमेशा मीडिया में ये बोलता रहा हूँ, इस शरीर को 1 से लेके 2 घंटे कष्ट दो, मतलब अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज करो, और आप बुढ़ापे से, एजिंग से दूर रहते हो. एंड ट्रिपल डी, डिसीज से दूर, ड्रग से दूर और डॉक्टरों से दूर. तो सिटिंग के लायक बनो. सिटिंग के लायक कब बनोगे? जब एक अच्छी क्वालिटी की आप एक्सरसाइज करोगे. आपने बोला अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज, उस पे आप काफी एम्फेसाइज कर रहे हैं. बिल्कुल. व्हाट एग्जैक्टली डज इट आपने कंस्टिट्यूट? देखा ना, लोग पढ़ते समय कोई टॉप करता है, उसने भी 5 घंटे पढ़ा, उसने भी कोई 90%, 95%, है ना. सेम इज विद द एक्सरसाइजेज. एक तो स्पेसिफिक टारगेटेड एक्सरसाइज, तो उस इलाके को स्ट्रॉन्ग बनाना, फ्लेक्सिबल, टू मेक दैट एरिया, सपोज नेक, लोअर बैक, there are targeted exercise for the neck, back, specific exercise to make that area strong and flexible. Then overall aerobic exercise that makes you strong, as I told you, disease, drug, doctor, youthfulness, that maintain your youthfulness. Aerobic exercise, there are different types of aerobic exercise. और जिनको मैं करता हूँ, जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, 2 एरोबिक एक्सरसाइज. तीसरी भी कह सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग, दौड़ सकते हो तो दौड़ो. मैं आज भी, मेरी एज काफ़ी है, आज भी मैं 6 to 8 किलोमीटर दौड़ता हूँ.
दौड़ नहीं सकते तो ब्रिस्क वॉक करो, मैक्सिमम पॉसिबल बॉडी की कितना उससे, आइडियल टाइम कितना होना चाहिए ब्रिस्क वॉकिंग depending के on लिए? your personality, depending on your schedule. So ideally there should be at least 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Aerobic, then in aerobic exercise, साइकिल हम लोगों ने काफ़ी इसको इग्नोर किया है। और साइकिल में ये नहीं दिल्ली की सड़क पे चलाओ, इट इज़ डेंजरस, आई नेवर एडवाइज। साइकिल हर जगह अच्छी क्वालिटी की साइकिल बहुत कम पैसे में मिल जाती हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पूरी फैमिली उसको चलाए। नथिंग लाइक साइकिल, एक छोटा सा स्पेस, घर का कोना उसको चाहिए साइकिल को, और उसमें रेजिस्टेंस बढ़ा के चलाते जाओ। साइकिल पूरे लोअर पार्ट स्पेशली नी को तो सॉलिड कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है, वेट बहुत कैलोरी काफ़ी बर्न करती है साइकिल। जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, देन स्विमिंग अगर आप कर स्विमिंग सकते हो। करना चाहते हैं या हाँ, कर कर सकते कर हैं तो? सकते हो। तीसरा होता है वेट उठाना, है ना। वेट भी हमारी मसल वीक होते रहती है। अगर पॉसिबल है घर में डंबल रख लो या थेराबैंड रखो। डंबल हो तो कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, जिम जा सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे उसमें रिग्रेट नहीं करना है मैं जिम नहीं जा सकता, कोई बहाना नहीं बनाना है, जिम जाने का टाइम नहीं है। घर में टाइम निकल आता है आपका जब आप थोड़े से खाली पेट हैं। थेराबैंड और डंबल अलग अलग तरीके से वो तरीके होते हैं, तो आपने वेट ट्रेनिंग भी कर ली। फिर उसके बाद बॉडी, मैंने बताया आपको, विद द ग्रोइंग एज बॉडी गेट्स वीक, मसल गेट्स वीक एंड रिजिड। सो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दैट कम्स फ्रॉम द योगा। ओके। सो स्ट्रेचिंग तो एक्सरसाइज योगा भी भी आपके टोटल जो एक्सरसाइज रेजीम है उसका पार्ट हो सकता पार्ट है? है। योगा सब कुछ नहीं है। एंड मैंने आपको बताया योगा बिल्कुल सब कुछ नहीं है। खाली योगा पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, सेम इज विद द वॉक पे डिपेंड नहीं कर सकते। कई बार मैंने बोला हुआ है, वॉक इज ए ब्रिस्क वॉक इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, लेकिन इट इज़ नॉट ए कंप्लीट एक्सरसाइज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सरसाइज, डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग योर टाइम, ऑल दीज थिंग्स। या So, since we are talking about the bone health in the context of women, as a woman, when can she know that now there is warning sign that my bone and joint is giving me? What दैट are इज those ऑल्सो गुड क्वेश्चन। signs? वन इज एज, है ना। आफ्टर द एज ऑफ 40 or 50, डिपेंडिंग ऑन वीमेन टू वीमेन। सो व्हेन जब आप पहले जो सारे काम कर पाते थे उसमें, नाउ यू आर हैविंग लिटिल ट्रेवल इन डूइंग दीज थिंग्स। व्हेन यू आर वॉकिंग लिटिल फास्टर, नाउ यू से, पेशेंट कई बार आता है बोलता है अब मैं उतना तेज़ नहीं चल पाती हूँ डॉक्टर साहब। एंड व्हेन डॉक्टर साहब मैं चलती तो हूँ लेकिन मेरी चाल बदल गई है अब। हाँ, और देन दे कैन से लिथार्जी, कुछ थका थका सा रहता है शरीर, या लोअर पार्ट में नी के नीचे। these are the signs of aging, hormonal changes, all these things. So these are the subtle signs. later on पेन भी आ जाता है। अब मैं वॉक करती हूँ तो नी में पेन हो जाता है, बैक में पेन हो जाता है। तो दीज आर द साइंस, सटल साइंस होते हैं, इट इज़ साइलेंट साइन। इनको दे हैव टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। Yeah. So falls भी एक एज वुमेन एज एक बड़ी इशू है। मतलब फ्रैक्चर्स भी देखते हैं हम, फॉल्स भी देखते हैं जो काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। बट कभी कभी स्पेशली जब व्हेन वुमेन आर यंगर, सम ऑफ दीज फॉल्स आर सॉर्ट ऑफ डिसमिस्ड एज रैंडम और बैड लक, रैंडम इंसिडेंट्स, फ्रीक इंसिडेंट्स। तो कब हमें समझना चाहिए कि ये फॉल या फ्रैक्चर जो हो रहा है वो एक्चुअली बोन वीकनेस की वजह से हो रहा है और ये सिर्फ इट्स नॉट रियली Yeah. द रैंडमनेस ऑफ? अगर if there is a definitive some missing or some because of stepping or some you missed your step or something significant is there, then you fall, then it is not a issue. But without any cause you fell, not only because of sometime arthritis makes you fall, मसल वीकनेस, बट थिंग इज दैट एज यू टोल्ड इन द यंग एज, है ना, यंग एज में इट हैपन्स वेरी रेयरली, बट इन एल्डरली, स्पेशली इन द फीमेल, मेल फीमेल बोथ, इट इज़ वेरी कॉमन। सिग्निफिकेंट ट्रॉमा है तो स्ट्रॉन्ग बोन भी टूट सकती है। इनसिग्निफिकेंट लाइक आप बाथरूम में स्लिप कर गए, सो अगर इस पैर स्किड किया आपका या थोड़ा कहीं टंबल कर गए, पता लगा फिर उठ ही नहीं पाए,
तो वो इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा, माइनर ट्रॉमा, ट्रिवियल ट्रॉमा से जो कुछ होता है वो सिग्निफिकेंट है, स्पेशली इन द दिस हैपेंस इन द एल्डरली. इट मीन्स यू आर रियली ऑस्टियोपोरोटिक. एंड दो ही जगह फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है. डेली इमरजेंसी में एक आध पेशेंट ऐसा आता है, हिप फ्रैक्चर, देन स्पाइन फ्रैक्चर, वर्टिब्रा कोलैप्स कर जाती है, एंड देन हिप फ्रैक्चर, स्पाइन, देन रिस्ट फ्रैक्चर ऑल्सो. आपने सपोर्ट लिया रिस्ट का, रिस्ट आपकी ब्रेक कर गई. So we spoke a lot about exercising, etc. Now, on the role of supplementation. When exactly should a person, specifically women, consider supplements? ये आप पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप या प्रेगनेंसी के समय है ना, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन्स का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ना. Right, बेबी because है you have to उसकी, pass it on to the बेबी baby. है तो उस समय प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो ये तो यंग एज में तो ये दो कंडीशन हो गई. बाकी पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप में आपको डेफिनेटली कैल्शियम सप्लीमेंट, प्रोबेबली इतना कैल्शियम खाने में होता है काफ़ी अपने खाने में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जा पाता, तो उस समय लेना चाहिए. खासकर 60 के ऊपर तो मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं. DEXA scan के बारे में we keep hearing. Apart from that also, are there some tests that you advise women to take maybe annually? DEXA is very good test, but even on plain X-ray, you can make out bone is osteoporotic. और by history पेशेंट से बात करके, एग्जामिनेशन करके, प्लेन एक्सरे. और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होना है, और भी ज़्यादा और क्लियरिटी चाहिए कितनी बोन वीक है, तो ओनली डेक्सा इज इनफ. So what is the cutoff age do you think जिसके बाद maybe annually या once, twice in a year can this test be considered? इससे डेक्सा मिसयूज होता है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती. Once in 2 years डेक्सा इज इनफ. Once in 2 years is also enough. या बिकॉज बोन का जो हेल्थ होती है इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, और वो धीमे धीमे करके या तो स्ट्रांग होती है या धीमे धीमे करके ही वीक होती है. हाँ. Dr. Yadav, calcium is important for our body, we all know. Yeah. Especially from the point of view of joints, for instance. How exactly does it help in making them, better sort of functional? What happens, bone is formed by some network is there, protein network. And उस प्रोटीन नेटवर्क के ऊपर ग्रेजुअली कैल्शियम डिपॉजिट होता है, और जितना ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होगा उतनी बोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा मानी जाएगी. या सीमेंटिंग की तरह काम कर सीमेंटिंग की तरह काम करता है. और सीमेंट की क्वालिटी, सीमेंट का अमाउंट, तो होता क्या है, जो हमारा नेटवर्क है बोन का, जो जाली खोखली होती है, जाली होती है, उसके ऊपर प्रोटीन की जाली होती है, यू कैन से दैट. कैल्शियम उन जाली के बीच में जो जगह होती है, उसके ऊपर बीच में उसको फिल करता है. जैसे ही कैल्शियम वो निकलने लगता है वहाँ से, जाली सारा खोखला होने लगता है, वो सारी जाली जाली रह जाती है. वो कभी भी वो जाली कोलैप्स कर सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है. तो जितना ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होगा उतनी बोन की स्ट्रेंथ अच्छी मानी जाएगी. जॉइंट क्या होता है, दो हड्डियों के मिलने से, दो बोन्स के मिलने से बनता है, और हड्डियों के एंड्स पे एक चिकनी लेयर होती है जो कार्टिलेज होती है. तो जैसे ही वो कार्टिलेज ख़त्म होने लगती है, हम उसको अर्थराइटिस बोलते हैं, कह देते हैं जॉइंट ख़राब हो गया. और वो कार्टिलेज किसके ऊपर फाउंडेशन है, उसका क्या है, बोन के ऊपर है. जब हमारा फाउंडेशन वीक होगा, वहाँ कैल्शियम नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोटिक बोन होगा, तो कार्टिलेज जल्दी से ख़राब हो जाएगी, एंड उसकी थिकनेस कम हो जाएगी ग्रेजुअली, तो अर्थराइटिस आ जाएगी. And what exactly is osteoporosis? What happens when somebody has कैल्शियम osteoporosis? गेट्स अवे फ्रॉम द मेन, जो उसका ट्रेविकुलर पैटर्न है, जो उसका जो उसका ब्रिज है, जो ब्रिज बनाया आपने, वहाँ से सब सीमेंट निकल गया, कैल्शियम निकल गया. सो दैट इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द बोन. और उसी सीमेंट, उसी कैल्शियम से ही स्ट्रेंथ बोन में आती है, और बोन स्ट्रांग तो जॉइंट भी प्रिजर्व रहता है आपका. And where does the role of vitamin D? Because we know that for bone health, again, vitamin D is also very, very important. As I told you, whatever you eat, any amount of calcium, if a sufficient amount of vitamin D is not in your blood, then
it will not be utilized, deposited over the bone. Okay, so So it helps if in the deposition of. deposition and many other functions, many, even calcium is requirement for the muscle functioning as well. So whatever muscle is functioning, it getting is stronger because of calcium. Calcium also has a role in the cardiac muscles, heart की problems, heart की जो So चीजें होती bones के हैं, साथ साथ मसल्स की भी मसल के फंक्शनिंग लिए के भी लिए कैल्शियम जरूरी बहुत है, इम्पोर्टेंट. एग्जैक्टली जरूरी है. सो इफ समबडी इज इनटू एक्सरसाइजिंग, हमारे कैल्शियम की नीड भी बढ़ती है क्या, और इट रिमेन्स थ्रू आउट बढ़ बढ़ जाती जाती है, है? बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ जाती है. हरियाणा के पहलवान वो तो वेजिटेरियन होते हैं, और कैल्शियम इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. इसीलिए उनकी ड- कैल्शियम की इनटेक भी हाँ, ज़्यादा उनकी हो जाती स्ट्रांग है. बोन होती है. मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ये सब, और मिल्क प्रोडक्ट जो लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. और जितना कैल्शियम डिपॉजिट है उस फ्रेम के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, उतनी बोन स्ट्रांग है. सर एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, बिकॉज यू ऑल्सो स्पेशलाइज इन नी रिप्लेसमेंट हाँ सर्जरीज. यार, नी A lot रिप्लेसमेंट of इज माय women especially who are heavy or obese have to undergo this surgery, but I also see a lot of compared women who are not very don't have very heavy body weight. They also sometimes need these surgeries. Why exactly is the? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. थिंग इज दैट ओबेसिटी इनवाइट्स degenerative arthritis fast. There is a no doubt, no dispute. बट देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स. और कई बार हम लोग की मेडिकल साइंस सब कुछ डिस्कवर नहीं कर पाई है. कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी हो फिर भी जाए. अर्थराइटिस हो गया. हाँ, जिसके साथ रिस्क फैक्टर है दे उनको पक्का होती है और पहले हो जाती है ना. रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको अर्थराइटिस होगी आफ्टर द 70. इफ लाइक वेट आपने बात की, वो है तो वो जल्दी हो जाएगी. बट ओवर वेट होना, एक्सरसाइज नहीं करना, फीमेल जेंडर इटसेल्फ, मेरा जो जॉइंट रिप्लेसमेंट मैं करता हूँ, दिस इज क्लियर. करीब 60 to 80% पेशेंट फीमेल होते हैं जिनके जॉइंट रिप्लेसमेंट किए. 60 to 80%. हाँ इतना या इतना बड़ा ह्यूज ह्यूज प्रोपोर्शन. डिफरेंस है. मान के चलो आप करीब करीब 3 या 4 फीमेल के साथ एक मेल होता है, तो ह्यूज डिफरेंस है. कोई भी अर्थराइटिस हो, इवन रोमेटॉइड हो जो अर्ली स्टेज में होती है, इवन डीजनरेटिव अर्थराइटिस में, डीजनरेटिव में थोड़ा सा कम है, लेकिन फीमेल जेंडर प्रोबेबली हार्मोनल चेंजेस दे आल्सो इनवाइट. और हार्मोनल प्रोबेबली चेंजेस, लाइफस्टाइल भी. I'm sure. लाइफ स्टाइल भी, वो आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया. इवन हमने एक स्टडी की थी एम्स में कि भाई हमने देखा अपना डाटा उठा के किसके हम जॉइंट बदल रहे हैं, तो उसमें डाटा में था फीमेल के बदले जा रहे हैं सबसे ज़्यादा. फिर उसमें हमने फर्दर उसको क्लासीफाई किया, भाई कौन सी ये फीमेल है. उनका ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ्स जो एक्सरसाइज नहीं करती थी, जो घर में रहती थी, अपना खाना खा लिया, सो गए, या घर में थोड़ा सा कुछ किया, हस्बैंड आ गया, उनको खाना बना के दे दिया, फिर सो गए. तो हाउस जो वर्किंग लेडी होती है, तो वो उनको इसके चांसेस, वो फिर भी घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ती है, मेट्रो पकड़ती है, चलती है, ऑफिस जाती है, उनको ये चांसेस कम होते हैं. देखो, खड़े होके खाना बना लिया, दैट इज नॉट ए एक्सरसाइज. अब चक्की तो नहीं चला रही वो, है ना, चारा तो घर में मशीन से काट नहीं रही वो, या पहले है ना. जैसे लोग हाथ से कपड़े धोते थे. ऑल दोस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन दीस डेज. कुल मिला के आप जो भी घर का काम कर रहे हो, दैट इज नॉट ए एक्सरसाइज. मैं भी 10 घंटे खड़े होके ऑपरेट करता हूँ. मैं सोच रहा हूँ मुझे तो बस हो गया, मैं तो खड़े होके काम कर रहा हूँ, है ना, बैठ के ओपीडी करता हूँ. एक्सरसाइज उसको बोलते हैं जिसमें बॉडी को पुश करना पड़े. एक्सरसाइज करने के बाद आपको थोड़ा सा पसीना आना चाहिए, थोड़ा बॉडी हार्ट रेट बढ़ना चाहिए. दैट्स द. हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, पसीना आना चाहिए, बॉडी गर्म होना चाहिए, आपको लगे मैं पुश कर रहा हूँ, दैट इज़ द एक्सरसाइज. आपने वहीं वहीं बैठ के कुछ कर लिया कुछ, दैट इज़ नॉट ए एक्सरसाइज. दैट उससे आपका फिटनेस नहीं आती है. So, if I ask you, a woman in maybe 40s, 50, if there are different women in each of these decades, 40, 50, 60, 70, what exactly do you think should be the criteria of saying that this woman has healthy bones and joint health? बेसिकली 40 पे वीमेन शुड बी एबल टू कैरी आउट एवरीथिंग. जॉगिंग भी कर सकना चाहिए, है ना, साइकिल भी है, मे बी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स,
वेट भी अच्छा खासा उठा सकते हैं. सेम इज ऑलमोस्ट 50. 60, beyond 60, there may be little jogging speed may be little down, okay, and may not be like 10 kilometers jogging. So maybe 6 or 8 kilometers, like that. So if and they don't have any symptoms, complaint, it means they are healthy. They are able to carry out all their daily activity. They are able to work out the way they want and they are comfortable. It means they are healthy. एक चीज़ जो मैं देखती हूँ इन वुमेन अराउंड अस, स्पेशली आफ्टर 50-55, मैनी वुमेन डोंट वांट टू, फॉर इंस्टेंस अगर किसी वजह से उनको फ्लोर पे बैठने की ज़रूरत, दे टेंड टू अवॉइड इट. should that actually be, they should avoid doing that, or they should push, it helps their joint and bone बहुत अच्छा mobility? क्वेश्चन है. इसको मैंने पहले भी एड्रेस किया है. होता क्या है, कब नीचे, हम तो हिंदुस्तानी हैं ना, हमारे नीचे बैठ के हम ज़्यादातर काम करते हैं और करना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक एज के बाद वो एज हर एक वीमेन में अलग हो सकती है, औरत में. उसमें नीचे बैठने में आपको परेशानी होने लगे, आपको लगे नहीं, थोड़ा सोरनेस आ जाती है, उठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो दैट इज़ द टाइम फिर आप ज़मीन पे ना बैठ के स्टूल कुछ ले लो, थोड़ा सा वहाँ उस टाइम पे बैठना शुरू कर देना चाहिए. और क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए. वो कुछ एक्सरसाइज आपको बताएगा, सिखाएगा. अगर वो आपकी फिटनेस डाउन है, फिटनेस को ऊपर ले जाना चाहिए. अगर वो करने लगोगे तो शायद नीचे बैठने लायक आप लंबे टाइम तक बने रहो. लेकिन सिंस यंगहुड, बिल्कुल आप ठीक हो तब भी डर रहे हो, दैट शुड हाँ, नॉट जैसा आपने शुड बोला, नॉट बी मेनी द वुमेन आर स्ट्रेटजी. एक्चुअली वरिड अबाउट गेटिंग अप. उनको लगता है कि हम उठ नहीं पाएंगे, या उठने में तो बिना मसल, सपोर्ट के तो उठ ही नहीं हाँ, सकते. तो ये मसल स्ट्रेंथ की कोर ग्रुप आपको उठाता है, थाई मसल आपको उठाती है. Now some quick questions, sir. So if I ask you what is the common mistake which, maybe women after 40 make related to their bone and joint health, what would it be? The biggest mistake that women What make. they think with the growing age during perimenopausal, they think this is normal and they take it easy. normal है, अब तो एज हो रहा है तो ऐसे ही होगा. But this is wrong attitude. That is the time you have to be more on exercises, more particular with the diet, and you have to be more mentally strong. That is the time. And one exercise, if I ask you, that is most important for instance, somebody is really hard pressed for time, is one exercise that they can do. Which is the exercise you would suggest? Brisk walking. Brisk Or walking. jogging. Okay. It's good for everybody, irrespective of Yeah, their yeah. status. Also, a common red flag that you would say, many when they say they have to go to a doctor related to their bone and bone health and mobility. Any joint bone, it is paining, and pain is, as I told you, associated with the swelling भी आ रहा है, stiff भी है, and it is gradually increasing. It is gradually increasing and it is limiting their activity of daily living, ADL. Then these are the sign, and they should consult their doctor. Yeah. So we discussed a bit about the supplementation. Now, can you name maybe some food which are particularly good from the point of bone health? Yeah, that is good. So milk product, that is most important. Milk product, and they are very rich source of calcium, okay, and protein as well. So other product like a leafy vegetable, green leafy vegetables, even non-veg like fishes, even non-veg other meat, and egg. Egg is also one of the good protein and all these things. So these kind of That is things. good source of calcium and other minerals. For the bone health, not only calcium needed, vitamins D is very important, and other micronutrients, they acts together. ऐसा नहीं आपने कैल्शियम दे दिया, विटामिन डी यूज ही नहीं होगा कैल्शियम. It will go out in the form in the urine or excreta. So all these things, micronutrients, protein, and vitamin D, calcium, all are equally important.
So it has to be an overall complete nutritious nutritious and complete diet. meals that people हाँ, should एक प्रॉब्लम think है हमारी about. थोड़ी सी डाइट की, हमारे इंडियन डाइट की, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो उसमें फाइंड आउट कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा, नमक नमक बोन को वीक करता है, एल्कोहल, टोबैको, है ना, बहुत ज़्यादा, इवन कॉफ़ी कुछ हद तक, कुछ ड्रग्स बोन को वीक करते हैं, ओवरऑल प्रॉब्लम लाते हैं। तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करो, साल्ट, शुगर, ये सब कम करो। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे अफेक्ट योर बोन हेल्थ। Is there an age you would say where women in particular should start thinking about supplementation like Shilcan? हाँ, you can perimenopausal age group. They can start, as I told you. And even after the age of 60, even male, female, they can think about the supplementation. One habit that is silently, damaging one's bone health, but they don't know. What would that habit be? Sedentary life. Sedentary life, taking lot of alcohol, caffeine, tobacco. Tobacco is killer. Even I can say it is more dangerous than alcohol. And Okay. sedentary life. Tobacco and sedentary Yeah. lifestyle. Yeah. So whether it's true or false, if you don't have pain, you don't have any bone related issue. Usually most of the disease, they comes in the form of pain. But sometime like in the hip fracture, they don't have pain. So subtle trauma. So even the patient was not having pain, just slip किए fracture हो गया. So it is partially true. इट्स पार्शियली ट्रू, Partially मतलब true. ऐसा भी हो सकता है ऐसा कि भी हो आपको सकता है। पेन ना हो बट फिर हाँ। भी आपके बोन्स की हालत हाँ, खराब हो, खराब हो. बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल Yeah. एग्जैक्टली। That was really insightful. It was really fun talking to you and getting so many details and nitty-gritties about bone health. Thank you so much, Dr. Yadav, for being with us. थैंक यू Really सुमी, appreciate थैंक यू your फॉर taking. इनवाइटिंग मी, थैंक यू सुमी।